स्वामी मुझे, आया हूँ तेरे चरणों में। शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु। गाए जीवन में जब बंदेरा, बन जा तू जीवन प्रकाश मेरा। गिर जाए जीवन में जब बंदेरा, बन जा तू जीवन प्रकाश मेरा। बन जा तू मेरी आशा प्रभु जी, बन जा तू मेरी आशा प्रभु जी। टूट न जाए मेरी हिम्मत प्रभु जी, टूट न जाए मेरी हिम्मत प्रभु जी। दे दे मुझे विश्वास तेरा, संदेह मन में जब आए। शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु, शरणम 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 प्रभु। Dear bishops, fathers, sisters, faithful family members and friends, a very good morning to you all. As we struggle and pray hard to recover from the unexpected demise of our dear sister Neera on 22nd April, today in a special way, we, the Congregation of Medical Sisters of St. Francis of Assisi, bishops, fathers, sisters, and faithful of Bareilly Diocese, fondly remember her on the 7th day after her death. Through this Eucharistic celebration, we earnestly pray for the departed soul of our dear sister Neera. Sister Neera, being a calm and serene person, lived her life with much contentment and love. Social work being her passion, and the fruitful life she had lived with love, and that love she shared with the poor and the needy is admirable and remarkable. We rejoice in the gift of Sister Neera's life with us. Her trust in God and her gratitude for all that God gave her defined her life. She was a silent sufferer and ever ready with a word or act of kindness or support when needed, and her generosity was never ending. She cherished her religious life and enjoyed a good relationship with all. Her entire life was one of seeking God in all people and in all creation. We are consoled by the sure fact that she is once again back in her loving God's embrace to enjoy the same love that she so generously gave to others through her life. Sister Neera will leave a big gap within our hearts, our convents, our ministry, our province, and our international congregation by her sudden death. We can't replace the absence of someone we love. We pray for all of us, for the family members of Sister Neera, especially in this unreal time. We also express our heartfelt condolence to the family members and assure them our prayers.
Our prayers are with those whose lives were touched by Sister Neera's kindness and dedication, her family members, her close friends, all who knew and accompanied Sister Neera on her life's journey. We ask God of all consolation to comfort her family members and all of us at this time of loss. We believe that Sister Neera has completed the good race and lived her life to the full. She fulfilled the task assigned to her by God Almighty, and now she rejoices with her beloved Jesus, whom she served faithfully. May we all take Sister Neera's death positively and pray that she may enjoy the blissful vision of the Lord in his heavenly home. Though she is not with us physically, she is close to us, watching our every act and imploring God's blessings on us all. We are consoled by the fact that Lord has added one more OSF sister in his heavenly company to intercede for us. Now let us take part in this holy Eucharistic celebration, invoking God's mercy and eternal bliss for our dear Sister Neera. सिस्टर नीरा के सुंदर समर्पित जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज उसको हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दयालु प्रभु अपने राज्य में उनको अनंत शांति प्रदान करे और सभी वैश्विक संसार के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनकी कोई परेशानी हो, प्रभु सांत्वना और आशीष प्रदान करे। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए इस प्रदान में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम आमीन। उसकी कृपा, उसकी शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। I have no problem, Father. Others, this is the stuff. I have just like fever. ये सिस्टर के आखिरी शब्द सुनने के लिए थे। दूसरा प्रेसिडेंट से मैंने पूछा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे सिस्टर को प्रॉब्लम है, वो परेशान है, मेरे कोई परेशानी नहीं है। और जब मैंने उनको बोला ठीक है, तो मैं हाथ कैसे उठाकर धन्यवाद दिया। इसका आखिरी और संकेत है मोबाइल में। आज स्वर्ग से हाथ बोलकर हम लोगों के लिए ईश्वर की आशीष दे रही है। हम ईश्वर को धन्यवाद करें। आइए कृष्ण हम लोग पावन करें और नीरा की सुंदर जीवन के लिए उसको धन्यवाद देते हुए आज काल में विशेष रूप से उसको प्रभु को समर्पित करें ताकि महत्व प्रभु, करुणालु प्रभु, दयालु प्रभु उनको क्षमा करके, उनको शुद्ध करके, उनको अपने राज्य में जगह दे, जगह उनके लिए तैयार किया गया है। भाइयों बहनों, सिस्टर नीरा हम लोगों के संकेत हमें भी वहां जाना है। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु
हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवका समीरा ने इसके प्रेम से प्रेरित होकर मुक्ति का मार्ग अपनाया था। जब तू अपनी महिमा में प्रकट होगा तो इनकी आमीन। That is my gospel, for which I suffer hardships, even to the point of being chained like a criminal. But the word of God is not chained. Therefore, I enter everything for the sake of the elect, so that they may also obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is sure, if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. This is the word of the Lord. Thanks be to God. सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ
सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है, धन्य प्रभु के काम लूटे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। भाई और बहनों, हम सबों को मालूम है कि ये जीवन यहाँ का पूर्ण नहीं है, क्षणिक है। जब भी कोई मृत्यु का मिस्सा होता है, रिक्विमास होता है, मुझे एक घटना हमेशा याद आती है। शायद ये घटना आप लोगों को भी बहुत मदद करेगी। मुझे इस घटना ने बहुत मदद किया है, आपको भी ये घटना मदद करेगी। एक साधु एक बार एक
राजा के पास आते हैं। बड़ा महल है, राजा अपने दरबार में बैठे हैं और सब टाट बाट के साथ वहां पर सब चल रहा है। तो एक साधु आकर राजा से कहते हैं, महाराज क्या मैं इस तंबू में कुछ समय आपके साथ रह सकता हूं? राजा को बहुत गुस्सा आया। क्या कहा तुमने? तंबू? इतना बड़ा महल, इतना आलीशान मकान, इतना बढ़िया, इतना सुंदर, सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, अब उसको तंबू कहते हो? यदि तुम साधु नहीं होता तो मैं इसी समय तुम्हें मार डालता। महाराज गुस्सा ना करे, ये महल किसने बनाया था? ये मेरे परदादा ने बनाया था। ओ बहुत महान व्यक्ति थे। और कितना साल राज्य किया उन्होंने? उन्होंने 87 साल राज्य किया। 87 साल तक वो जिए और 33 साल तक उन्होंने राज्य किया था। उसके बाद तो मर गए। फिर तुम्हारे दादाजी आए थे। दादाजी कितना साल रहे? वो 80 साल रहे। उसके बाद तो मर गए। और तुम्हारे पापा आए उसके बाद, कितना साल जिए? 77 साल, और उसके बाद मर गए। और तुम कितना साल जियोगे? कितना साल इस महल में रहोगे? तब तक राजा की आंखें झुक गई थी और राजा उठा और उसके पैरों पर पड़ा और कहा, स्वामी मुझे क्षमा करना, मेरे घमंड को माफ कर देना, सचमुच ये तंबू है। मेरे भाई और बहनों, ये फोटो आप सबों के, ये सुंदर चमकता हंसता हुआ सिस्टर नीरा का फोटो कहता है, मेरे भाई मेरे बहन जी, फादर सिस्टर, ये जीवन यहां का तंबू है। 12 फरवरी को हम लोगों ने सुचेतना में करीब 80 कोऑर्डिनेटर्स और एनिमेटर्स ने मिलकर सिस्टर का सिल्वर जुबली बनाया था। उनके व्रत धारण का सिल्वर जुबली बनाया था। बड़ा खुश थी, बहुत मस्त थी सिस्टर, बहुत खुश थी। सब कुछ अभी खत्म। यहां जीवन तंबू है। यहां का जीवन, सिस्टर का जीवन यहां कहता है, सिस्टर की मृत्यु कहती है, सिस्टर के प्रभु के पास जाना कहता है। भाई बहन जी, यहां पर के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जीवन यहां के लिए क्षणिक है, जाना है, इसलिए तंबू है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान का प्रबंध करूंगा और निवास स्थान का प्रबंध करने के बाद आऊंगा, मैं तुमको ले जाऊंगा जिस मैं जहां हूं तुम भी रहो। वो शाश्वत है, वही केवल शाश्वत है। यदि हम लोग कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 2 अध्याय 5 वाक्य 1 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 1, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वो ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है, अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। नित्य निवास। यहां का तंबू नहीं है, वहां का निवास ही नित्य है। इसलिए प्रभु कहते मैं ले जाऊंगा तुमको। हम सभी यहां रहने के लिए हैं, लेने के लिए प्रभु हम लोगों को ले जाएगा ताकि प्रभु के साथ हम रहे। हम सबों को मालूम है कि हमें जाना है ना? हम सबों को मालूम है, हम विश्वास भी करते हैं, हम रहने के लिए नहीं आए हैं, वहां जाना है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम जीते हैं, जब व्यवहार करते हैं, जब हमारा संबंध रखते हैं, जब हम लोग गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, नफरत रखते हैं, क्षमा नहीं करते हैं, जब हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं? यही मेरा परमानेंट घर है, यही रहना है, जाना नहीं है। उस समय वो सब कुछ भूल जाते हैं। सिस्टर नीरा
मुस्कुराते हुए हम सबों से कहते हैं, भाई रहना नहीं है, जाना है, तुमको वहां पर जाना है, वही नित्य निवास है, यहाँ का घर गिरा दिया जाएगा, जैसे वसंत हमलों ने सुना था। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 3 यदि हम लोग 14 में पढ़ेंगे, फिलिपियंस 3:14 हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहता है, मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त करूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। भाई और बहन जी, आपको और मुझे इसलिए बुलाया है ताकि हम वो पुरस्कार प्राप्त करें जो हमारे लिए तैयार रखा है। जैसे संत पौलुस कहता है, हम उस पुरस्कार के लिए तैयार करना है जिसके लिए सिस्टर नीरा ने तैयार किया था अपने जीवन के द्वारा, अपनी कर्मठता के द्वारा। वहां पर किच्छा में और अन्य जगह में मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया होगा। किच्छा मैंने देखा है लोगों के साथ, जो गरीब लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, जो अनपढ़ बच्चे हैं उनके साथ कार्य करते हुए, अपना जीवन समर्पित करते हुए वो पुरस्कार के लिए उन्होंने तैयारी किया है। यही तो उनके साथ जाएगा। क्या जाएगा उनके साथ? शिष्य के साथ आज क्या जा रहा है उधर? भाई उनका जो प्रेम लोगों के साथ उन्होंने किया था, कितने महिलाओं को, बच्चों को, जो गरीब लोगों को उन्हें सहायता की थी, मदद की थी, उनको प्रोत्साहित किया था, आगे लाने के लिए कोशिश किया था, वही उनके साथ जा रहा है आज। वही संत पौलुस कहते हैं, मेरा पुरस्कार तैयार है। मेरे भाई बहन जी, जो इसके मन में लक्ष्य स्पष्ट है उसके लिए यहाँ संसारिक चीजों के लिए मन नहीं रहता है, उसका मन प्रभु के चीजों में लगा रहता है। लेकिन जिसके मन में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है वो यहीं पर मैं छोड़ूंगा नहीं, क्षमा नहीं करूंगा, इकट्ठा करेंगे, कबड़ भरा रहेगा, बैंक बैलेंस रहेगा, सब यहाँ होगा, देंगे नहीं। सिस्टर ने दिया, उसके पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं रहा होगा, सब कुछ उन्होंने दिया। वैसे आज हम लोग को यदि वो निवास हम लोगों का होना है, हम लोग को भी देना है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन प्रभु ने कहा है सुसमाचार में, क्योंकि वही केवल मार्ग है, वही केवल सत्य है, वही जीवन है। आज हम लोगों ने पहले पाठ में तीमुथियों की पत्र अध्याय 2 वाक्य 11-8 से पढ़ा था। जीवन किसको मिलेगा? यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। मरने से जीवन नहीं मिलेगा। यदि हम उनके साथ मरेंगे, बहुत जरूरी शब्द है, जो मरता है उसको अनंत जीवन नहीं मिलता है। यदि हम उनके साथ मर गए, प्रभु का जीवन अपनाना, मदद करना, सेवा करना, अच्छा जीवन बिताना, ये प्रभु के साथ मरना होता है। प्रभु के साथ मरना और ऐसे मरना बहुत फर्क होता है। सिस्टर, जैसे मैंने आखिरी शब्द बोला था, वो लोग बीमार है, उनके परेशान, जैसे शुरू में आपने पढ़ा था, साइलेंट सफरर, मेरे कष्ट नहीं, दूसरों के कष्ट पर, वहां पर भी अस्पताल में भी मेरे बारे में नहीं सोचती है, दूसरों के बारे में सोचती है सिस्टर। ये कहता है उनका जीवन के बारे में कि मेरा कष्ट नहीं, दूसरों का, उसके प्रभु के साथ मरने के लिए वो तैयार है। देखिए एक शब्द जो पहले पाठ में हमने था, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। यही मेरे सुसमाचार का विषय है। हम लोग का जीवन का विषय क्या है? हम लोग का विषय क्या है? हम लोग सुसमाचार किया, मृतकों में से पुनर्जीवित प्रभु यीशु, जिस पर सिस्टर ने विश्वास किया, इसलिए उसके साथ वो पुनर्जीवित है। मृतकों में से पुनर्जीवित, मृतकों मतलब पहले मरना है उसके साथ, तब उसके साथ जी उठना है। आज मेरे भाई बहन जी, सिस्टर नीरा के लिए हम लोग प्रार्थना करने से काफी नहीं है। सिस्टर नीरा के जीवन से कुछ सीखना, उनके जीवन के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा हमें कुछ सीखने की जरूरत है और लेने की जरूरत है। सबसे पहले वो कह रही है, तंबू है। आजकल आप लोग देखते हैं जवान बच्चे, जवान कितने फादर सिस्टर जवान लखनऊ में, मेरठ में, नागपुर में मैंने सुना
जवान फादर, जवान सिस्टर, कल ही एक जवान सिस्टर आगरा में। उसका मतलब ये सभी लोग कह रहे हैं ना तंबू है। आइए कुछ क्षण के लिए अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, मौन रहें, प्रभु को समर्पित करते हुए थोड़ा सा मनन चिंतन करें। क्या सिस्टर मीरा हम लोग को कहते कि हम सुन सकते हैं? ये जीवन यहाँ का क्षणिक है। कुछ ही दिन पहले बॉस बिल्कुल ठीक, आज वो यहाँ पर नहीं है, प्रभु के साथ है। मैं भी प्रभु के साथ कभी भी जाने के लिए बुलाया गया हूं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। बस तैयारी करना है, अपना मन को शुद्ध करना है, सब लोगों को क्षमा करना है, तो इकट्ठा करने के बदले देना है। ये घमंड को मैं, मेरा, हमारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको छोड़ के नम्र बनने की जरूरत है। प्रभु यही आज सिस्टर नीरा के जीवन के द्वारा हम लोग को सिखाता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए हो, हमारा जीवन अपने लिए ही ना हो, दूसरों के लिए हो। केवल हम लोग मरे नहीं बल्कि प्रभु के साथ मरे। उस वही हमारा मार्ग है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा पुनरुत्थान है। खड़े होकर सिस्टर नीरा के लिए अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करेंगे। इस वक्त हम विशेष रूप से अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, संत पापा के लिए, बिशप स्वामी के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मियों के लिए, कि हम सभी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करते हुए प्रभु के साथ जीकर प्रभु के साथ मरने वाले बन सकें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन दिनों में बहुत से फादर सिस्टर लोग प्रभु के पास गए हैं, खास करके कोरोना के कारण। प्रभु एक एक को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु हर एक के पापों को क्षमा करते हुए उनको शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे और अपने राज्य में जगह दे दे। इसके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। विशेष रूप से प्रभु आप सिस्टर, प्यारे सिस्टर नीरा को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें जो भी सुंदर काम किया है यहाँ पर अन्य जगह में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी महती दया से, करुणा से प्रभु क्षमा करके उनको अपने राज्य में वो स्थान दे दे जिसको आपने उनके लिए तैयार किया है। इसके लिए हम लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। कल रात को फादर थॉमस रास्ता जो खातगुडम के पल्ली पुरोहित थे पहले, कल प्रभु के पास गए। आज उनका 11 बजे अंतिम संस्कार है। प्रभु विशेष रूप से फादर थॉमस रास्ता को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु उनको भी क्षमा करते, शुद्ध करते, पवित्र करते और अपने राज्य में उनको जगह दे दे। इसलिए हम लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी सिस्टर नीरा के परिवार के लोगों को आपको समर्पित करते हैं। उनकी बहन सिस्टर दीपिका और अन्य उनके भाई और बहनों और उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, एक एक को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी जो दुख परेशानी उनको हो रही है प्रभु जी, और खास करके हम OSF संस्था के सभी सिस्टरों को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु उन सबों को आप सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वक्त प्रभु जी पूरे दुनिया में, खास करके हमारे इलाके में, हमारे देश में बहुत ही आतंक फैला हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग भयभीत हैं और बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दवा नहीं है, दवा दिलाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसा लोग बोलते प्रभु केवल आप ही हमारा सहारा है। इंसान नहीं कर सकता है, कितना भी करे काफी नहीं है। हे प्रभु दयालु प्रभु, जो भी कोरोना से पीड़ित हैं, परेशान हैं और उनके परिवार के लोग, प्रभु सब लोगों को आप देखभाल करें। जो भी बीमार है उनको आप चंगाई प्रदान करें और परिवार के लोगों को आप सांत्वना प्रदान करें। इसके लिए प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे क्रिश्चियन मौन रहकर जो भी अपने निजी निवेदन है प्रभु के सम्मुख रखें।
खास करके जो भी आपके परिवार से जो भी बीमार हैं उनको प्रभु के सम्मुख रखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाखिल सो रोटी के साथ, ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, उस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन, जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रसो रोटी के साथ। दाखरस और रोटी के साथ, हे प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु सिस्टर नीरा हम सबों के लिए एक चिन्ह बन जाएं, ताकि उनके जीवन से, उनकी मृत्यु से हम लोग सीख सकें। और प्रभु यीशु के इस मिस्र बलिदान के साथ, इस रोटी दाखरस के साथ सिस्टर नीरा को, उनकी आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु अनंत जीवन उनको प्रदान करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित है, न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे विधान के अनुसार हम सब जन्म लेते हैं और तेरी इच्छा के अनुसार हम सब जीते हैं। तेरे आदेशों के अनुसार पाप के कारण हम उस मिट्टी में मिल जाते हैं जिससे हम बने हैं। हम जिनकी मुक्ति तेरे पुत्र की मृत्यु द्वारा हुई है, तेरा संकेत पाकर उसके पुनरुत्थान की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसलिए सभी दूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु भविष्य मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य वे जो आपके नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है प्रभु, तू इस सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, जो धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, जो धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हमारे विश्वास का रहस्य, जब ये रोटी खाते हैं
पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी सारी कलीसिया की सुधि ले, इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपनी सेविका सिस्टर नीरा और अपने सेवक फादर थॉमस क्रास्ता की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें ये वर दे जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन सभी भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत तेरेसा, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता है जो हम सबों को प्यार करता है, इसलिए उसी पिता को हम लोग पुकारे। जिस तरह से सिस्टर नीरा ने बहुत बार उस पिता को पुकारा था, हमें उसी पिता को पुकारते हुए बोले, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, तेरे जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन के प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी सारी मंगलमय आशाओं को पूरा करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर, हमारी गलतियों पर नहीं बल्कि हमारे विश्वास पर, पूरे कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल। हम सबों को आपकी शांति, प्रेम और एकता प्रदान कर युगानो जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम आपस में शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए
प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो शांति प्रदान करता है, जीवन देता है, नए जीवन के लिए हम सबों को बुलाता है। धन्य हम सब प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। छोटों को सदा मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। इसे लगाए जो छोटों को सदा मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था मुझे नीर पिलाया, मुझको संभाला दया से तुमने, अमर पिता ने तुम्हें बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा मनुज मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, इस भोजन के लिए, मुक्तिदायी भोजन के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए, जीवनदायी वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस भोजन के द्वारा, वचनों के द्वारा आपने हमारी आत्मा को तृप्त किया है, आपको हम धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी बेटी सिस्टर नीरा, जिनको आपने संसार में भेजा था, बुलावा दिया था, और जिन्होंने एक सुंदर जीवन बिताते हुए, लोगों की सेवा करते हुए एक सुंदर शुद्ध जीवन बिताया था, कर्मठ जीवन उनका था, समर्पित जीवन उनका था। इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए आशीष मांगते हैं प्रभु, क्षमा करके, शुद्ध करके, उनको पवित्र करके अपने राज्य में जगह दे दें। जो जगह आपने देने का आश्वासन किया है, वो आपके साथ मर गई है, तो आपके साथ जी उठकर आपके राज्य में अनंत शांति वो भोग सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हमारे धर्म प्रांत के विश्व स्वामी बिशप इग्नेशियस डिसोजा और सेवानिवृत्त बिशप एंटोनी फर्नांडिस,
धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, धर्मों की ओरों से मैं सिस्टर नीरा को उनके सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी उन्होंने किया था, हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और उनको हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। खास करके उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके जो परिवार के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी बहन, अपनी बेटी को हमारे लिए समर्पित किया था, सेवा के लिए समर्पित किया था। जो भी काम उन्होंने यहाँ पर हमारे धर्मनाथ में किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सभी OSF सिस्टर्स को, उनके संस्था के प्रोविंशियल जनरल और सभी संस्था के लोगों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सिस्टर नीरा को हमारे धर्म प्रांत में खास करके समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। अब धन्यवाद हो और प्रभु आप सबों को भरपूर आशीष हो और सिस्टर नीरा स्वर्ग से हम सबों के लिए प्रार्थना करती रहे। हम लोग इस अंतिम गीत के समय फूल अर्पित करते हुए सिस्टर नीरा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।